गुड इवनिंग, माय नेम इज़ सौरभ मीना। आफ्टर माय लास्ट वीडियो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स एंड ईमेल्स आए हैं। आई एम सॉरी आई वोंट बी एबल टू आंसर ऑल दी मेल्स, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। जो इंपॉर्टेंट वंस है, जो बाकी सभी के लिए रेलिवेंट है, आई विल ट्राई टू आंसर सम ऑफ दोज. So the first one is, good afternoon sir, there is too much confusion about preference of institutes. For example, there is a institute, National Bureau of Plant Genetic Resources in Delhi, which has 10 regional centers in different states of the country. So my doubt is, where would I be posted if I choose this institute? I am from Delhi and I want Delhi posting. He wants Delhi posting, and he is already a central government employee posted in Mumbai. I am leaving my current job only because of home posting Delhi. भाई ठीक है. One more request. If you know any assistant posted at any institute in Delhi, please kindly help me connect him. I'm sorry, I don't know anyone in Delhi. I know a few senior administrative officers who are my batchmates, but no assistants. Sorry. Second question था, he is already in a central government job in Mumbai, and he is leaving only because of home posting Delhi. Bhai, it depends. I would not recommend कि only because of home posting Delhi if you try for this posting, because only because of this, if that is the only criteria, only reason why you are shifting, it might not be a good option, I think, because और भी factors आप आदमी को देखने चाहिए. Just because of home posting, one should not choose a thing. There are other factors also to consider. And the first one, genuine issue है, NBPGR. So मैंने इसका वेबसाइट देखा था. This is NBPGR, and इसे कहीं ना कहीं वो लिखे होंगे, रीजनल सेंटर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा होगा. डिविजन्स, रीजनल स्टेशंस, यस. सो अकोला महाराष्ट्र में, बोवाली, ये तो नाम भी नहीं सुना था. कटक हैदराबाद, जोधपुर, ओह नाइस, शिलोंग, रांची, शिमला, थ्रिसुर, श्रीनगर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yes, he is correct. So there are 10 places. So he could be posted in any one of those, depending कि वहाँ vacancy है या नहीं, and depending on the director. So posting मिल सकती है. Second question is, इनका कुछ रैंक आया है. I am working as accountant in Ministry of Science and Technology in Hyderabad. Okay, हैदराबाद में वर्किंग है. होम स्टेट यूपी का है, एंड इनको लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी है इनको बरेली में मिलने का. बट IVRI के देख लो कोई रीजनल सेंटर है भी या नहीं. आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो, है ना. येस, वी कैन गेट रीजनल सेंटर्स विच आर लोकेटेड इन अदर स्टेट्स. येस, यू कैन गेट, इट्स ट्रू. आप देखो ना, बेनिफिट आप किस लिए देख रहे हो. There is no benefit of it. Only home state should not be a criteria for getting or for preferring a job. Grade पे हो गया. There are other factors also which are important. मैंने कई पुराने वीडियोस में भी कहा है, you can see them. उसमें पूरा डिटेल में मैंने बता रखा है कि 3-4 फैक्टर्स ज़रूरी है जो आप देखें, नॉट जस्ट होम स्टेट. आप और सोचें इसके बारे में, ठीक है. कई लोग ऐसे होते हैं होम स्टेट में जाके और परेशान हो जाते हैं, बिकॉज उसका भी एक रीज़न होता है कि रिलेटिव्स से एक्सपेक्टेशंस रहती है, रिलेटिव्स की एक्सपेक्टेशंस वो मीट नहीं कर पाते हैं. होम स्टेट पे डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा होते हैं कुछ लोगों के लिए. सो इन कारणों से कई लोग होम स्टेट नहीं लेते हैं. आप सोच लीजिए. आई डोंट थिंक सो दैट दिस शुड बी द ओनली फैक्टर विच यू शुड टेक इनटू कंसिडरेशन. ठीक है. आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इन ICAR. ठीक है. कैटेगरी रैंक इनकी लेस देन 12 है, and I'm sure that I'll get posting in Delhi headquarter. Very good. Now he's currently working in a central government job as inspector in CGST department, which is level 7. Level 7 में ऑलरेडी मुंबई में है, 1500 किलोमीटर्स फ्रॉम माई होम टाउन दिल्ली. इतना बड़ा इशू नहीं है. When you already in level 7 and the department in CGST, why are you planning to join ICAR assistant? ICAR असिस्टेंट इज़ नॉर्मली लेवल 6, हेडक्वार्टर्स में लेवल 7 है. बट सी क्या डिफरेंस होगा, मैं आपको एक बात बताता हूँ. CGST डिपार्टमेंट प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ही, बट उसमें जो ऑफिसर्स हैं GST डिपार्टमेंट के, ऑफिसर्स ऑफ जो इनडायरेक्ट टैक्सेस बोर्ड में आते हैं ये लोग, इन दैट बोर्ड
जो ऑफिसर्स हैं दे आर द प्राइमरी ऑफिसर्स जिनके लिए सारी पॉलिसीज उस बोर्ड की बनती है. आई हैव वर्कड इन दिस बोर्ड. I was posted in Department of Revenue, Ministry of Finance, CBDC, Central Board of CBIC. उस समय इसको अलग कहते थे, Customs and Excise Department था. When I was there, that time it was different. अभी शायद Central Board of Indirect Taxes है. Now in that board जो officers होते हैं इस डिपार्टमेंट के, दे आर द प्राइमरी ऑफिसर्स, और उनके अंडर में भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, हु आर द सेकेंडरी स्टाफ फॉर सपोर्टिंग दोज ऑफिसर्स. नाउ इन ICAR इज प्राइमरली अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. इसमें साइंटिस्ट आर द प्राइमरी स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ इज फॉर द सपोर्ट. ना आप वहाँ पे उस डिपार्टमेंट में प्राइमरी कैडर के मेंबर हो और उसको छोड़ के आप इधर एज अ सपोर्टिंग में जाओगे. इवन अगर ग्रेड पे सेम है, आई वुड नॉट रिकमेंड. हैड यू बीन सिलेक्टेड एज एन AO देन आई कुड हैव रिकमेंडेड यू. कई इंस्पेक्टर्स हैं उन्होंने एज ए AO ज्वाइन किया है बिकॉज यहाँ पे ग्रेड पे बेहतर है. दिस इज अ ग्रुप A जॉब, सो फॉर देम आई हैव रिकमेंडेड, बट आई डोंट थिंक सो यू शुड. बाकी इट्स योर डिसीजन विच यू शुड टेक. आपने मुझसे पूछा इसलिए मैंने आपको बता दिया है. Is it a good decision to switch from central government to an autonomous for home posting? Again, I'm saying only home posting should not be the criteria. आप होम पोस्टिंग के चक्कर में ऐसा मत करिए. कई लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स छोड़ के स्टेट गवर्नमेंट की होम पोस्टिंग में आते हैं और वो पछताते हैं क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में वर्किंग इतनी अच्छी नहीं है, इतनी स्ट्रीमलाइन नहीं है जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में होती है. तो जस्ट बिकॉज ऑफ होम पोस्टिंग प्लीज़ डोंट. होम पोस्टिंग में भी फिर क्या होगा कि और इश्यूज होते हैं और अलग पॉलिटिक्स होती है. सो ओनली बिकॉज ऑफ होम पोस्टिंग आप मत करिए, आप दूसरे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखिए. यू विल गेट होम पोस्टिंग एज आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क एट माई होम प्लेस. आप जितना होम प्लेस में रहेंगे ना, उतना आपको एक्सपोजर कम मिलेगा, उतना आपकी ग्रोथ कम होगी, उतनी आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कम होगा, और जितना स्ट्रगल करेंगे उतना आप और बेहतर बनते जाएंगे. सो डोंट टेक होम पोस्टिंग. ये है फोर्थ पॉइंट इज आई हैव बीन सिलेक्टेड अगेंस्ट OBC कैटेगरी विद रैंक लेस देन 90. Selected against duty, I will be at the 30th rank from the top in over. My question is whether my rank will be considered as 30. You don't, ये सब मत सोचिए. These things are not in our hand. वो जो रिक्रूटिंग अथॉरिटी है, इट इज़ फॉर देम टू डिसाइड. कई लोग ज्वाइन भी नहीं करेंगे, ठीक है, एंड कई लोग हो सकते हैं हेडक्वार्टर भी ना प्रेफर करें. सो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता. व्हाट आर द चांसेस फॉर गेटिंग UP एंड ICAR हेडक्वार्टर, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता. नो कमेंट्स, ठीक है. आई एम वर्किंग इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस at 4200 grade pay, but here the drawback is transferable every 5 years. Well, ICAR में भी ट्रांसफ़र होगा. ये मत सोचिए कि आपका ICAR में कभी ट्रांसफ़र नहीं होगा. अभी ICAR में भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं, यू नेवर नो, ठीक है. What are the promotional aspects in ICAR? Are they timely and in what durations? They are not timely and it depends on many factors I have told in my earlier videos. आपकी वैकेंसी होगी तो ही आपका प्रमोशन होगा भाई, वैसे आपका प्रमोशन नहीं हो सकता. आपको अगर 8 साल भी हो गए और वैकेंसी नहीं हुई, आपको प्रमोशन नहीं होगा. हालांकि यू विल गेट चांसेस, हो सकता है कि आपको लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का चांस मिले और हो सकता है कि आपको डेपुटेशन पे जाने का भी चांस मिले, बट इट डजंट मीन दैट यू विल गेट प्रमोटेड, ठीक है. आई एम वर्किंग एज PO. आई एम वेरी कन्फ्यूज भाई. देखिए, आई हैव वर्कड एज अ PO एंड माई एक्सपीरियंस टेल्स दैट PO में ग्रोथ अच्छी है, सैलरी अच्छी है, पर्क्स बहुत अच्छे हैं, बट वहाँ का वर्क प्रेशर बहुत बहुत ज़्यादा है. वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बेकार है. इट्स बेटर टू वर्क इन अ मल्टीनेशनल कंपनी देन वर्क इन अ PO. सो वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज में एटलीस्ट यू विल बी अर्निंग लाइक 3 to 4 times
after you put in 10 years of your life in that job. टाइमिंग यहाँ पे आपको बैंक में 10 से 7:30 बैठना पड़ता है, मिनिमम है ये. आई नो, आई हैव इवन सैट टिल 10-11 फॉर मंथ्स कंटिन्यूसली. सो ये तो मिनिमम है, बट हमारे यहाँ पे टाइम होता है कि 9 to 6, मैक्सिमम 7 समटाइम्स. असिस्टेंट का इतना वर्कलोड इतना ज़्यादा नहीं होता पीओ के कंपैरिजन में. ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर होता है असिस्टेंट में. नेक्स्ट इज, सॉरी आई मिस्ड अप. Kindly clear some doubt about it. If we posted in institutes in North, so can we be transferred to institute in South anywhere in India or some other institute in North only? देखिए, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के अंदर ट्रांसफर्ड हैं, आपका ट्रांसफ़र अगर होगा तो उसके रीजनल स्टेशन में हो सकता है, उसके अलावा नहीं होगा नॉर्मली. अगर आपका प्रमोशन होता है और उसी इंस्टीट्यूट में डब्ल्यू की पोजीशन है तो भी आप उसी इंस्टीट्यूट में रहेंगे. लेकिन आप डेपुटेशन पे दूसरे इंस्टीट्यूट पे जाते हो तो जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जहाँ पे वैकेंसी होगी आपका वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा. एंड सिमिलरली आईसीआर में क्या होता है कि ग्रुप बी सर्विसेज में ऑल इंडिया ट्रांसफ़र लाइबिलिटी नहीं है, बट वंस यू बिकम ग्रुप ए इन एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर तो आपकी ऑल इंडिया ट्रांसफ़र लाइबिलिटी रहती है. ट्रांसफ़र, मैंने कहा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से इन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ट्रांसफ़र ऑफ एन असिस्टेंट इज़ पॉसिबल, बिकॉज इट डिपेंड्स कि दोनों इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स की क्या से है. आप जो इंस्टीट्यूट आपको रिलीव करेगा वहाँ के डायरेक्टर भी एग्री होने चाहिए, एंड जो इंस्टीट्यूट बुलाना चाहता है वहाँ के डायरेक्टर भी रेडी होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर देयर एनी पर्क्स इन आईसीआर रिगार्डिंग चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस? भाई, ऑल द पर्क्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं सब रहेंगे इधर. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी रहेगा, ठीक है, न्यूज़पेपर अलाउंस भी रहेगा, एवरीथिंग जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में 7th पे कमीशन में जो है, एवरीथिंग, ऑल ऑफ इट इज देयर इन आईसीआर. Hello sir, hope you are good. I have got rank less than 135 and unreserved rank less than 68 in merit. Currently I am at 1900 grade pay in Ministry of Defence in Delhi. It is not possible for me to go outside Delhi for a job. That is why I joined, because it is in Delhi only. So what preference to fill? पहले आप हेडक्वार्टर्स भर लीजिए, ठीक है. हेडक्वार्टर्स में 35 पोस्ट जनरल की है एंड माई रैंक इज, अच्छा मुश्किल है हेडक्वार्टर्स मिलना, बट ऑल द कैंडिडेट्स वोंट बी फिलिंग हेडक्वार्टर्स ओनली, एंड some even may have gotten a job. So do you think I can get Delhi as preference? Bhai, you can try, but you never know. अगर आपको मिलता है then you can think about joining. अगर आपको दिल्ली बिकॉज आपके लिए मेन क्राइटेरिया है, और आपको अगर दिल्ली आपकी वाइफ ही अगर ऐसा है वहाँ पे पोस्टेड है, या फिर कुछ फैमिली सिचुएशन ऐसी है कि आपको दिल्ली में ही रहना है, तो अगर आपको मिलता है देन यू कैन ज्वाइन. अगर नहीं मिलता देन यू कैन थिंक अबाउट इट, बट देयर इज़ टाइम. अभी से इतना एंक्शियस होने की ज़रूरत नहीं है भाई. कुछ ही दिनों में देयर विल बी मोर क्लैरिटी. जस्ट होप फॉर द बेस्ट. ठीक है. कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स, आई डोंट नो, आई एम सॉरी, आई हैव नो आइडिया रिगार्डिंग दिस एंड आई कैन नॉट आंसर दिस. थैंक यू वेरी मच ब्रो. ठीक है, थैंक यू एवरीवन. ऑल ऑफ यू गाइज हैव बीन वेरी सपोर्टिव, है ना. I am presently working as a sorting assistant in Delhi, which is 2400 grade pay in Delhi, and I have also taken government accommodation quota. Since surrendering the accommodation, formal resignation takes time, so I am guessing it may take up to 2 months for me to join my allotted institute. I want to know, if I take extension for joining, will ICR change my allotted institute, some other institute? Example, if I choose Varanasi Institute according to preference form, but after extension it is changed to Lucknow Institute. ऐसा होना नहीं चाहिए. एक्सटेंशन आपको मिलता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. होपफुली ऐसा नहीं होगा. I joined Postal Department on 27 November and I had attended ICR DV on 4 December, but at the time of DV, ICR staff were asking for declaration to be filled in case someone is working in other department. Also, they were asking any proof whether the candidate is working or not. But at that time, I have proof regarding my claim that I am a working candidate. So I didn't fill the declaration form. But now I have been selected and my rank is good enough to join any institute or whatever. So what will I do now? इन्होंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया 27 नवंबर को, एंड वेरिफिकेशन में 4 दिसंबर को उसमें उन्होंने बोल दिया कि आई एम अ वर्किंग कैंडिडेट. जो भी होगा यू हैव टू बी फ्रैंक. जब आपसे राइटिंग में कुछ भी पूछा जाएगा, बी फ्रैंक अबाउट इट.
दे विल टेक केयर. मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि पहले मैं एक सर्विस में था, आई थिंक इसी सर्विस में आने के टाइम हुआ था. अर्लियर मैंने इस AO का एग्ज़ाम दिया था 2014 नवंबर में, एंड उसके बाद 2015 जुलाई में आई गॉट सिलेक्टेड इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज. एंड एकदम से 2016 में मेरे को मैसेज आता है कि दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू फॉर दिस पोजीशन. एंड देन आई इन्फॉर्म माई डिपार्टमेंट कि एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग दिस डिपार्टमेंट मुझे भी नहीं पता था. आई हैड ऑलरेडी गिवन द एग्ज़ाम मच बिफोर joining this department, and I was not aware that I have even applied for this exam, or I have even written for this exam, so I could not inform this department. And in the meantime, I have been called for an interview, so please provide me no objection certificate. I was very frank. मुझसे पूछा गया, मेरे अंडर सेक्रेटरी ने पूछा, and I told him frankly, and there was no issue, and I got technical resignation also later on from that department. सो राइटिंग में कभी भी कुछ ही पूछेंगे आप उसको फ्रैंकली जवाब दे दीजिए. अनुषा जी, ओके. आई एम सॉरी आई कैन नॉट आंसर दिस. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि किसको हेडक्वार्टर मिलेगी या नहीं. वुड इट बी वाइज टू डायरेक्टली विजिट ICAR दिल्ली कैंपस एंड आस्क फॉर सम इनसाइट्स ऑन द अबव मैटर फ्रॉम द एडमिन सेक्शन? व्हाई नॉट? आप जाके पूछिए, पता करिए. इसमें वाइस क्या है? यू आर ट्राइंग टू नो मोर अबाउट द सर्विस वेर you will be joining. I don't think so there should be an issue. ठीक है. So all the best. Thank you everyone, and congratulations once again. And hopefully मुझे ऐसा लग रहा है कि it's just a matter of days that we will be having new assistants very soon. ठीक है. Okay, good night. Thank you.